السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے جی سب لوگوں کا؟ ماشاء اللہ اس دن بس ہمیں کوئی اچانک کام آ گیا اور ہم جو ہے وہ کر نہیں پائے. تو چلیے کوئی بات نہیں، آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ تر اس کو کر سکیں، لیکن ابھی بھی وی ہیو گاٹ 3 more minutes. Do you think we should start or we should wait for the others to join? I think let the others to join. 3 minutes کا کوئی نقصان نہیں ہے. We still have got 3 minutes, right? ٹھیک ہے. Let's wait for 2. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی بھی 1 منٹ رہتا ہے، کوئی بات نہیں، ہم ویٹ کر رہے ہیں. بھی آپ جو ویٹنگ ٹائم ہے نا اس کو ریموو کر دیجیے گا نا بعد میں جب آپ ریکارڈنگ ڈالیں گے تو ٹھیک ہے. ناؤ از دی ٹائم. چلیے جی، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. آج ہم پڑھنے لگے ہیں انشاءاللہ بتوفیق اللہ. بیا تھوڑا سا ذرا اس کو زوم ان کر دیجیے، تھوڑا سا بڑا ہو جائے، مجھے کئی دفعہ نا نقطے وغیرہ نظر نہیں آتے. اور یہ ہے کہ اسٹارٹ لیتے ہیں ہم. ذرا پچھلی حدیث بھی ذرا آپ دکھا دیں تاکہ تھوڑا سا پیچھے کے ساتھ ریلیٹ ہو جائے گا نا، ریکیپ ہو جائے گا جی. اور تھوڑا سا بڑا بھی کر دیجیے. ہاں جی، اچھا جی. یہ والے جو ہم نے لمبی حدیث پڑھی تھی 3862. بنی اسرائیل کے 3 افراد کی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی تھی، دنیاوی مال کے ذریعے آزمائش کی تھی. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ ہوا یہ کہ وہ جو صاحب تھے وہ ایک اندھا تھا اور ایک گنجا تھا اور ایک کو کوڑ تھا، جلد خراب، تباہ حال. تو وہ جو ہے نا وہ ان کے پاس فرشتے نے آ کے ان کو آزمایا. اس کو ایک کو بکریاں ملی، ایک کو گائے ملی، ایک کو اونٹ ملے. اور پھر کیا ہوا کہ پھر بڑے خوشحال ہو گئے. وہ جو بیماریاں تھیں وہ بھی دور ہو گئیں، کاروبار بھی چل گئے. تب ہوا کیا کہ دوبارہ فرشتہ آیا اور آ کے کہا کہ مجھے ضرورت ہے اور تمہیں یاد ہے کہ تم کیسے ہوا کرتے تھے. تو اس نے کہا نہیں. دو نے کہہ دیا کہ نہیں ہمارا تو خاندان ہی بڑا کمال کا تھا، میری تو باپ دادا کی پیسہ ہے، جدی پشتی امیر ہے. تو کیا ہوا کہ لیکن جو ایک تھا، شاید میرا خیال ہے کون تھا، گنجا تھا کہ اندھا تھا شاید، جس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ ہاں میں ایسا ہی تھا، اللہ نے مجھے غنی کیا تھا، تم میرے مال سے جو لینا چاہو لے لو. تو پھر کیا ہوا کہ وہ اس بندے کی جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، ان کا ضائع ہو گیا. اور جس نے شکر کیا اور اللہ کی نعمت کو ریکگنائز کیا اس کا مال جو ہے وہ
سامنے آ گیا اور اس کے مال میں بقا بھی آ گئی، کیونکہ جو چیز دنیا کو نفع دیتی ہے وہ زمین میں اسٹے کرتی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ چلیے جی بیا نیکسٹ حدیث پہ پہنچیے، اور بیا تھوڑا سا اس کو زوم ان کیجیے، ٹھیک ہے، نیکسٹ حدیث پہ پہنچیے۔ یہ حدیث ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی اور اب ہم نہیں پڑھتے، چلیے جی چلیے۔ اچھا جی، یہ دیکھیے نا بنی اسرائیل کے قرض دار اور قرض خواہ کا عجیب واقعہ۔ چلیں جی اب دیکھتے ہیں۔ عن ابی ابی ابن کعب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جبرائیل علیہ السلام، یا آپ میرا خیال ہے دوبارہ کر رہی ہیں، اسکرین غائب ہو گئی ہے۔ چلیے اچھا جی، ابی بن کعب کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ جبرائیل علیہ السلام جو تھے نا، ہینا رکب زمزم بعقبہ جعلت ام اسماعیل تجمع البطحاء، جب جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا کہ زمزم نکالنے کے لیے اپنی ایڑی کو مارا، ٹھیک ہے، اس پہاڑ کے اوپر نا جہاں پر وہ سیدہ ہاجرہ تھیں ان کو اسماعیل کو لے کر، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوا کہ جو ام اسماعیل تھی نا، انہوں نے کیا کیا کہ وہ تجمع البطحاء، بطحاء کہتے ہیں وادی کو، انہوں نے جلدی سے کیا کیا کہ اس کے ایک چھوٹا سا صحن نہیں بناتا جیسے وہ سائڈ میں اینٹیں لگا کے کہ وہی جیسے ایک بنیری سی یا جو ہوتی ہے ایک باڑ سی بنا دی تاکہ پانی اس کے اندر اکٹھا ہوتا رہے۔ نہیں ہمارے پاس نہیں۔ اچھا جی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ ہاجر ام اسماعیل لو ترکتها كانت عینا معینا، جو ام اسماعیل تھیں ان پہ اللہ رحم فرمائے، اگر وہ اس پانی کو چھوڑ دیتی نا تو یہ ایسے جاری چشمہ بن جانا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا وہ جو چشمے بنتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہر جو دریا ہوتا ہے کسی نہ کسی چشمے سے آ رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ چشمے کے آگے دریا بنتا ہے، پھر وہ آگے دریا بڑا ہوتا 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 اور بعد میں جا کے کسی نہ کسی سمندر میں بھی گرتا ہے۔ تو شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مراد تھی، لیکن ام اسماعیل جو تھیں انہوں نے کیا کیا کہ اس کا وہ ایک بنیری سے بنا کے تو اس کو ایسے کر دیا کہ وہ ایک جگہ پہ ریسٹرک ہو گیا۔ لیکن یہ ہے کہ اس کا پانی دیکھ لیجیے کہ زمانے سے کتنی صدیوں سے جاری ہے اور ابھی تک جاری ہے، اور ابھی بھی آپ دیکھیے کہ کتنے لوگوں کو وہ پورا پڑتا ہے، پوری دنیا میں پہنچتا ہے یہ پانی۔ چلیے جی، بنی اسرائیل کے قرضدار اور قرض خواہ کا ایک عجیب واقعہ، صدق دل سے اللہ تعالیٰ کو کفیل بنانے والوں کا انجام، 3864 حدیث ہے۔ ان ابی ہریرہ، ابی ہریرہ سے مراد ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجلا من بنی اسرائیل، ایک آدمی نے بنی اسرائیل میں سے سأل رجلا، ایک آدمی سے پوچھا ان یسلفہ 1000 دینار، یہ چھوٹا ہو گیا جان کیجیے گا ذرا بڑا، I can't see anything، مجھے بالکل عربک متن نظر نہیں آ رہا۔ Go ahead۔ جی جی ہاں جی، اچھا جی، اسکرین چلی گئی آپ کی بیا؟ اسکرین چلی گئی، اچھا ٹیک یور ٹائم، نو پرابلم۔ اچھا، ان رجلا من بنی اسرائیل سأل رجلا ان یسلفہ 1000 دینار، ایک آدمی جو تھا نا بنی اسرائیل میں سے، اس نے کسی آدمی سے 1000 دینار لینے کا کہا، فقال له، تو اس نے اس کو کہا کہ ائتنی بشہداء اشہدوہم علیک، میرے پاس کوئی نہ کوئی گواہ لے آؤ تو میں اس پہ گواہ بنا لوں کہ تو میرے پیسے وقت پہ واپس کر دینا۔ فقال، اس نے کہا کفا باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے گواہی کے لیے۔ قال فأتنی بکفیل، اس نے کہا کہ کوئی کفیل لے کے آؤ، کفیل اس کو کہتے ہیں جو ضمانت دیتا ہے نا، ایک گواہ ہوتا ہے ایک ضمانت دیتا ہے نا، ضمانت دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے نہ دیے تو میں دے دوں گا۔ قال کفا باللہ کفیلا، تو کہنے لگا کہ اللہ سے زیادہ کوئی کفیل کی ضرورت نہیں۔ قال، تو کہا صدقت، تو نے سچ کہا۔ قال، تو کہا فدفع الیہ 1000 دینار، تو اس نے کیا کیا، اس پہ 1000 دینار دے دیے، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک۔ تھینک یو بیا، یہ اب اچھا ہو گیا۔ فخرج فی البحر، تو ہوا کیا کہ وہ آدمی سمندر کی طرف روانہ ہو گیا، وقضى حاجته وجاء الاجل الذي اجل له،
अज्जल लह, अब क्या हुआ कि उसने अपनी पैसा वैसा खर्च कर लिया और फिर उसकी मौत आ गई जो भी अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर की हुई थी। फ़तलबा मरकबा, तो उसने क्या किया कि एक लकड़ी ले ली, उसने जो है ना कोई सवारी तलाश की, फलम यजिद, ना मिली, बीमार ज़्यादा हो गया होगा ना, अपनी ज़िंदगी की उम्मीद नहीं रही होगी। फ़अख़ज़ ख़शबतन, तो उसने फिर क्या किया, एक लकड़ी ले ली, फ़नक़रहा फ़अदख़ल फ़ीही अल्फ़ दिनार, और उसको खोद के ना, यानी उसके अंदर वो सारा खला पैदा किया और उसके अंदर जो है ना 1000 दिनार डाल दिए। वकतब सहीफ़तन इला साहिबिहा, और फिर एक ने उसने ख़त लिखा अपने उसी दोस्त को जिससे पैसे लेके आया था। तुम ज़ज्जज मौदिअहा, और फिर उसने क्या किया कि वो जो उसको किसी लोहे वगैरह की चीज़ के साथ बंद किया, यानी वो सारी लकड़ी के अंदर ना वैसे करके हॉल बनाया, 1000 दिनार डाले, उसको कवर किया लोहे की चीज़ वगैरह के साथ। ये जो इसके अंदर जो दाखिल करने की जगह थी वहाँ से, यानी उसका सुराख को बंद किया। तुम अता बिहा अल बहरा, और फिर उसके साथ क्या हुआ कि समुंदर में लेके आया। फ़क़ाल अल्लाहुम्मा, और कहने लगा अल्लाह, इन्नका क़द अलिमत अन्नी अस्तस्लफ्तु मिन फुलानिन अल्फिन दीनारिन, अल्लाह तुझे पता है कि मैंने फलां बंदे से 1000 दिनार लिए थे। फ़असल फ़सा फ़सा फ़सलनी फ़स फ़सअलनी शहूदा, और उसने मुझसे गवाह मांगे थे। वसअलनी कफ़ीला, और उसने मुझसे कफ़ील मांगे थे। फ़क़ुल्तु कफ़ा बिल्लाहि कफ़ीला, तो मैंने कहा था कि अल्लाह काफ़ी है कफ़ील के लिहाज से। फ़रदिय बिका वजहिदतु अन अजिदा मरकबा, और अल्लाह और वो इस बात पे राज़ी हो गया था कि ठीक है, अल्लाह मेरा गवाह है, ठीक है। वजहिदतु अन अजिदा मरकबा, और फिर क्या हुआ कि मैंने अब सवारी तलाश करने की कोशिश की है कि कोई आ जा रहा हो वगैरह, कोई तरीका हो। अबअस इलैहि हक़्क़ा, ताकि मैं उसका हक़ उस तक पहुँचा दूँ, यानी मैं उसकी कर्ज़ अदा कर दूँ। फ़लम अजिद, अल्लाह मुझे नहीं मिली। व इन्नी अस्तौदिअतुकुहा, तो मैंने क्या किया है कि अब ये वाला जो मामला है ना, कि पैसा मैंने तेरे सुपुर्द किया। फ़रमा बिहा फ़िल बहर, तो उसने उसको फेंक दिया समुंदर में। फ़ख़रज अर्रजुलु अल्लज़ी, तो एक आदमी निकल आया, कान अस्लफ़हु, तो अब क्या हुआ कि वो आदमी जो उधार देने वाला था ना, वो निकला जिसने उसको उधार दिया था। यंज़ुरु लअल्ल मरकबन यक़दिमु बिमालिही, ये देखने के लिए कि शायद कोई ना कोई लेके उसका पैसा आ रहा हो, भाई उसने वादा जो किया था मैं दे दूंगा, और वो निकला कि भी जाके मैं देखूं, हो सकता है कोई बंदा आ ही रहा हो ले पैसा मेरा लेके। फ़इज़ा हुआ बिलखशबती अल्लती फ़ीहल माल, तो अब क्या हुआ कि उसको अचानक नज़र आई एक लकड़ी जिसके अंदर वो पैसे थे। फ़अख़ज़हा हतबा, तो उसने वो लकड़ी पकड़ ली। फ़लम्मा कस्सरहा, जब उसने उसको तोड़ा, वजदल माला वस्सहीफ़ा, तो उसके अंदर से उसको पैसे भी मिल गए और ख़त भी लिखा हुआ मिल गया। फ़अख़ज़हा, उसने ले लिया। फ़लम्मा क़दिम अर्रजुलु, तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद वो जो कर्ज़ लेने वाला आदमी था ना, वो भी आ गया। क़ाल लहू इन्नी लम अजिद मरकबन यख़रुज, कहने लगा कि मुझे कोई ऐसी सवारी नहीं मिली थी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी-सी मैंने गलती की, वो जो है ना उसको जो अजल आ गई थी जो उसके लिए मुकर्रर हुई थी, मेरा ख़्याल है इससे मुराद मौत नहीं है। मेरा ख़्याल ये है कि उसकी जब ज़रूरत पूरी हो गई, तो उसने कहा कि मैं जो हूँ ना, अब मैंने वो अपनी वो जो वक़्त मैंने मुकर्रर किया हुआ पैसे देने का, वो आ गया, तो मैं सवारी ढूँढता हूँ, सवारी उसको मिली कोई नहीं। तो उसने क्या काम किया कि उसको लकड़ी में डाल के भेज दिया। यानी इससे मुराद मौत नहीं है। मुझे पहली वाली बात में लगा कि उसकी मौत शायद करीब आ गई थी। इसकी थोड़ी-सी तस्हीह कर लेते हैं। चलिए जी। तो फलम्मा क़दिमा अर्रजुलु, अब अचानक क्या हुआ कि वो अभी वो सहीफ़ा, वो ख़त और वो जो माल उसमें से निकाल रहा था, कि वो आदमी भी आ गया और उसने कहा इन्नी लम अजिद मरकबा, मुझे कोई सवार ऐसा मिला नहीं था जिसके हाथ में पहुँचाता। फ़क़ाल इन्नल्लाह अद्दा अन्का, तो उसने जिसका कर्ज़ था, उसने कहा कि बात है कि अल्लाह ने तुमसे अदायगी कर दी है। अल्लज़ी बअस्ता बिही फ़िल खशबा, जिसको तूने अल्लाह को ज़िम्मेदार बना के एक लकड़ी में डाल के भेजा था। फ़न्सरफ़ा बिअलिफ़ि राशिदा, अब क्या हुआ कि वो बंदा जो है बड़ा खुश हुआ क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरा कर्ज़ इस तरह मौजज़ाना तौर पे चुका दिया है कि मैंने समुंदर में फेंका और उस बंदे तक को मिल गया, क्योंकि उसने अल्लाह को जो है ना कफ़ील बनाया था। और बड़ा वो खुश हुआ और बड़ा खुशवश जो है ना अपने घर वापस चला गया। यानी एक कहानी है ना। बात ये है कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो अपने रब के ऊपर उम्मीद रखता है, अल्लाह उसके लिए कोई ना कोई मखरज बना देता है।
बस अल्लाह ताला ये तवक्कुल की तौफीक अता फरमाए। चलिए जी नेक्स्ट वाली पे चलिए, नेक्स्ट हदीस पे आइए। अच्छा जी, यूशा नबी के लिए सूरज का रुखना और उसकी वजह साबिका उम्मतों के मुजाहिदों का माल गनीमत आग खा जाती थी। चलिए जी 3865 हदीस है। अन अबी हुरैरा था मरफूआ, अबी हुरैरा से मरफूआन रवायत है, इन्न शम्सा लन तुहबस अला बशरिन इल्ला लियूशा लयालिया सारा इला बैतुल मक़दिस। सूरज जो है ना वो कभी किसी बंदे के लिए नहीं रुका, लेकिन यूशा अलैहिस्सलाम के लिए नहीं रुका। आ, उन दिनों की बात है जबकि वो बैतुल मक़दस की तरफ सफ़र कर रहे थे। वफ़ी रिवायतिन गज़ा नबिय्युम मिनल अंबिया फ़क़ाल लिक़ौमिही ला यत्तबिउनी रजुलुन क़द मलका बुदअ इम्रअतिन वहुव युरीदु अन यबनी बिहा वलम्मा बय्यनी बिहा। अच्छा जी, या फिर एक और रवायत में ये ज़रा थोड़ी-सी बात डिफरेंट है। ग़ज़ा, ग़ज़ा का मतलब होता है जिहाद करना। एक नबी ने जिहाद किया अंबिया में से और उसने अपनी कौम से कहा कि मेरे साथ किसी कोई बंदा ऐसा ना आए जो किसी औरत का के साथ शादी कर चुका हो, ठीक है? यानी शादीशुदा नहीं मुझे चाहिए। वहुव युरीदु अन यबनी बिहा और यानी किसी औरत के साथ उसने शादी करने का इरादा कर लिया, लेकिन और वो चाहता है कि उसके साथ मिलके फैमिली मेकिंग करे। वलम्मा बय्यन बिहा और लेकिन अभी तक की नहीं है उसने। वला आखिरु कद बना बुनियानन और वो बंदा भी ना आए जिसने घर बनाना शुरू कर दिया। वलम्मा यरफाउ सक़फ़हा और जिसने उसकी जो छत है वो बनानी छत नहीं अभी बनानी शुरू की, यानी घर बनाना शुरू कर दिया, अभी छत नहीं पड़ी। वला आखरू और वो भी ना आए कदिश तरा गनमन जिसने कि बकरियां खरीदी हुई हैं, ठीक है, औ खलीफातिन या फिर जो है जो है ना ऐसी बकरियां ये ऐसे जानवर हों वह हुआ मुंतज़िरुन बिलादहा कि वो हामला है और वो इंतज़ार कर रहा है कि उसकी विलादत हो। ज़रा समझिएगा बात को। यूशा अलैहिस्सलाम ने जिहाद का इरादा किया या अंबिया में से किसी नबी ने जिहाद का इरादा किया और उसने कहा 3 लोगों को मैंने साथ नहीं लेके जाना। एक आदमी जिसने शादी निकाह वगैरह कर ली है, लेकिन ये है कि अब वो अपनी फैमिली मेकिंग करना चाहता है, अभी रुखसती नहीं की है, यानी वो किसी औरत के साथ अटैच्ड है और अब वो चाह रहा है कि भई वक़्त मुनासिब आए तो मैं शादी करूँ और अपनी फैमिली बनाऊँ। या फिर एक ऐसा आदमी जिसने अपना घर बनाना शुरू कर दिया इन द मिडल है और अभी छत नहीं पड़ी। और ना ही ऐसा आदमी जिसने कि कोई ऐसे उसके पास रेवड़ है, बकरियाँ हैं जिनके बच्चे पैदा होने वाले हैं और उसको इंतज़ार है कि कब विलादत होगी वगैरह, मैंने ऐसे को नहीं लेके जाना। बात को समझें, बंदा जब जिहाद के लिए निकलता है ना तो बंदा अपनी जान के साथ माल भी लेके निकलता है और माल के साथ जान भी लेके निकलता है और बंदा कहता है मैंने वापस नहीं आना। तो जिसने तो निकाह कर लिया हुआ ना या मंगनी करके रखी हुई है, ठीक है ना, और अभी रुखसती नहीं हुई तो उसके दिल के अंदर शौक है हाय किस तरह मैं वापस चला जाऊँ। जिसने घर बनाना शुरू किया उसको ये मैं घर जाके अपना घर कंप्लीट कर लूँ। जिसके दिल में जो है कि अब जिसके जानवर पड़े हुए हैं उसके दिल में है कि मेरे जानवरों की विलादत होने वाली है, वो डबल हो जाएँगे, मैं वापस जाऊँ। ठीक है? तो मैंने ऐसा बंदा नहीं लेना। कहने का मतलब ये है कि मुझे ऐसा चाहिए कि जो अपनी कश्तियाँ जला के आए। ठीक है? चलिए देखिए क़ाल फ़ग़ज़ा और फिर क्या हुआ कि उस आदमी ने जिहाद किया यानी उस नबी ने जिहाद किया। फ़अदना लिलक़रियति हीन सलातिल अस्रि औ क़रीबन मिन ज़ालिक व फ़ी रिवायतिन फ़लक़िया अल अदुव्व इंद ग़ैबूबतिश शम्स। अब हुआ क्या कि ग़ुरूब आफ़ताब से पहले दुश्मनों से मुक़ाबला हुआ, ठीक है? एक और रवायत के मुताबिक ये है कि अभी यानी सूरज ग़रूब नहीं हुआ था उससे पहले जो है ना मुक़ाबला हुआ। फ़क़ाल लिश्शम्स तो उन नबी ने शम्स से कहा कि अंति मअमूरा कि ए सूरज तुम जो हो तुम्हें हुक्म है। मुझे 1 मिनट दे दीजिए, ज़रूरी कॉल है मैं
अच्छा जी, तो मैं बात ही कर रही थी कि हुआ क्या कि नमाज असर का वक़्त हो चुका था और क्या हुआ कि दुश्मनों के साथ जो मुकाबला हुआ, वो ग़ुरूब आफ्ताब से पहले हो गया। उस वक़्त सूरज ग़ुरूब होने लगा तो नबी ने सूरज को कहा अंत मअमूरा, कि ए सूरज तू जो है ना, तुझे अल्लाह का हुक्म है, तू अल्लाह की तरफ से अंति मअमूरा, सूरज जो है ये तस्निया का सीगा है कि तू अल्लाह की तरफ से मामूरा है, तो तू भी अल्लाह की तरफ से तेरी ज़िम्मेदारी लगी हुई है, व अना मामूर, और मेरी भी अल्लाह की तरफ से ज़िम्मेदारी लगी हुई है। अल्लाहुम्मा अहबिसहा अलैया शै, अल्लाह इस सूरज को कुछ देर के लिए मेरे ऊपर रोक दे। फहुबिसत अलैहि, तो क्या हुआ कि वो जो सूरज था वो रुक गया। हत्ता फतहल्लाहु ला, हत्ता कि अल्लाह ताला ने उनको फतह अता फरमाई। फगनिमु अलगनाइम, और फिर क्या हुआ, ढेरों माले गनीमत इकट्ठा हुआ। क़ाल फ़जमऊ मा गनिमू, उन्होंने कहा तो उन्होंने सब के सब वो जमा कर लिया जो माल गनीमत इकट्ठा हुआ था। फ़अक़बलतिन नारु लितअकुला, तो हुआ क्या कि आग आई और उसने जो है ना माल गनीमत को खा लिया। फ़अबत अन तुतअमह, ठीक है ना, क्योंकि उस ज़माने में ऐसे ही हुआ करता था। और इस ये जो है ना ऊपर कर दीजिए भैया, ज़रा ऊँचा कीजिए। हाँ जी। उस ज़माने में ऐसा ही होता था, बल्कि कुर्बानी के कबूल होने का निशानी ये होती थी कि उसको आके आग खा जाया करती थी। ठीक है ना? अच्छा, अब क्या हुआ, वकानु इदा गनिमु अलगनीमता बअतल्लाहु तआला अलैहिन नार फअकलतहा। अब हुआ क्या, जब उन्होंने वो गनीमत इकट्ठी कर ली तो अल्लाह ने आग भेजी, उस आग ने उनको खा लिया। फ़क़ाल फ़ीकुम गुलूलुन फलयुबायिअनी मिन कुल्ली क़बीलतिन रजुलन फ़बायअूहु फलसक़्क़त यदु रजुलिन बियदिही। अच्छा जी, अब क्या हुआ, इसे खाने के लिए आग आई। ऊपर कीजिए ज़रा, ऊपर कीजिए, मैं ज़रा नीचे वाला देखूँ। जी, जब माल गनीमत का ढेर इकट्ठा हो गया है ना, तो क्या हुआ कि आग आई, ठीक है ना? तो आग ने जो है ना, उसे ऐसा करने का इनकार कर दिया, क्योंकि तरीका ये होता था, जब गनीमत का माल हासिल होता था ना, तो अल्लाह ताला आग भेजता था जो उसको खा जाया करती थी। ऊपर कीजिए बेटा, और ऊपर कीजिए, ज़रा मुझे पूरी ये हदीस नज़र देखने दीजिए। अच्छा जी, ऊपर कीजिए भैया। अच्छा जी, तो अल्लाह ताला क्या करते थे कि इस मर्तबा आग ने जो है ना इनकार कर दिया, आग ने खाया ही नहीं। ठीक है, ऊपर कीजिए। अच्छा, अब क्या हुआ कि वो जो नबी है ना, उन्होंने इस आग के ना खाने की वजह बयान करते हुए कहा कि तुम में से किसी ने खयानत की है, यानी कोई चीज़ किसी ने छुपा के रखी हुई है। ठीक है? हाँ, हुआ क्या कि पहले ज़रा थोड़ी-सी बात को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अरबी की तरफ दोबारा जाते हैं। तो जिस चीज़ वो जो सारी उसके अंदर वो बैटालियंस जो बनी हुई थी, कबीले-कबीले बने हुए थे। ऊपर कीजिए बेटा, ज़रा नज़र आने दीजिए मुझे। ऊपर कीजिए। अच्छा, अब ये है कि उन्होंने कहा कि हर कबीले का एक-एक आदमी मुझे ज़मानत दे, बैत करे, ठीक है ना? और बैत करने के दौरान क्या हुआ कि एक आदमी का हाथ उनके हाथ के साथ चिपक गया और उन्होंने कहा तुमने खयानत की है। अब इस कबीले में खयानत है, अब तेरे कबीले का हर आदमी मेरी बैत करेगा ताकि मुजरिम का पता लग सके। तो फिर उन्होंने बैत शुरू की और आखिर 2 या ऊपर कीजिएगा बेटा, आखिर 2 या 3 आदमियों के हाथ चिपक गए, तो नबी ने कहा कि तुमने खयानत की है, ठीक है? तुमने खयानत की है। और क्या, तो उन्होंने बताया कि हाँ, हमने गाय के चेहरे की मानंद बनी हुई एक सोने की मूर्ति जो थी वो हमने छुपा ली थी। और ये है कि और इसे अच्छा, तो हुआ क्या कि वो चीज़ फिर वो वापस लेके आए, वो जो सोने की मूर्ति थी। उन्होंने ला के उसको माल गनीमत के साथ रखा, तो माल गनीमत को आग खा गई। अच्छा, उम्मत मोहम्मदी से पहले माल गनीमत किसी के लिए भी हलाल नहीं था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने देखा कि इंसान ज़ईफ़ और बेबस और मजबूर है, तो अल्लाह ने गनीमतों को हमारे लिए हलाल कर दिया। और एक और रवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हमारे साथ रहम करते हुए और हमारी कमज़ोरी की बिना पर हमारे साथ तख़फ़ीफ़ करते हुए गनीमत का माल खाने की इजाज़त दी। चलें जी, थोड़े से अब हदीस की अरबी की तरफ आएँ। अब थोड़ी-सी हदीस को अरबी की तरफ से पढ़ते हैं। ऊपर कीजिए, नीचे लाइए बिया आप। हाँ, अच्छा जी। अच्छा जी, सूरज रुक गया और अल्लाह ताला ने फ़तह दे दी। ठीक है?
अच्छा जी, अब क्या हुआ कि अब ऊपर कीजिए बेटा। हाँ, हुआ क्या कि हर अभी ऊपर वाली वो लाइंस नहीं आई जहां से हमने छोड़ा था, यानी नीचे कीजिएगा जरा प्लीज जी। अच्छा जी, और कीजिए। तरीका ये होता था, यहाँ से हम पढ़ते हैं, गनीमुल गनीमत बातल्लाहु तआला अलैहि अन्नारा फअकलतहा। उस जमाने में होता क्या था कि गनीमतों को इकट्ठा कर दिया जाता था और आग आती थी और उसको खा जाया करती थी। हुआ ये कि इस मर्तबा आग ने जो है ना, क्या हुआ कि गनीम माले गनीमत इकट्ठा हुआ है और उसको आग खा नहीं रही है। फ़क़ाल, तो नबी ने कहा, फ़ीकुम गुलूल, तुम्हारे दरमियान कोई धोखा है। फलयुबायिअनी मिन कुल्लि क़बीलतिन रजुलुन, तुम्हारी कबीले का हर बंदा जो है ना सरदार, वो मेरी बैत करे। ठीक है, ये यहाँ के मेरे सामने कसम खाई है, मेरे साथ हाथ से हाथ चिपकाए। फबायाऊह, तो और उन्होंने बैत की। फला सकत यदु रजुलिन बिरयदिही, ऐसे जैसे एक हाथ के ऊपर एक हाथ नहीं डाला जाता, ऐसे। फबायातहु, तो उन्होंने बैत की। काला फला सकत बियदि रजुलैनि औ थलाथतिन यदुहु फकाला फीकुम गुलूल। अब हुआ क्या कि एक आदमी जो था ना, उसका हाथ चिपक गया। ठीक है, लसिकत का मतलब होता है चिपक गया। तो नबी ने कहा कि तुम्हारे कबीले के अंदर बैत है, अब क्या करना है तुमने। अन तुम गलल, तुम्हारे लोगों ने जो है ना कोई ना कोई खराबी की है। काल अजल, उसने कहा हाँ, कद गलल ना सूरत सूरत वजही, ऊपर कर दीजिए, मुझे अरबी नजर नहीं आ रही है जी, ऊपर कर दीजिए। हाँ जी, कद गललना सूरत वजही बकरतिन मिन दहबिन, हमने बाकी पता चल गया जिन बंदों ने की थी। तो उन्होंने कहा कि हमने एक गाय के बनी हुई सोने की मूर्ति जो है वो हमने छुपा ली थी। काला फ़अख़रजूला, लेके आओ, मिथला रअसी बकरतिन मिन दहबिन, वो ले उन्होंने कहा कि लेके आओ। काला फ़वदऊहु फिल माल, अब क्या हुआ, वो लेके आए और उन्होंने माल के अंदर रखा। वहुव बिस्सईद, और फिर क्या हुआ कि एकदम आ गई और सारे माल को खा गई। फलम तहिल्ल गनाइम लिअहदिम मिन क़ब्लना, क्योंकि गनीमतें हमारे से पहले कभी किसी के लिए जायज़ नहीं थी। ज़ालिका बिअन्नल्लाह तबारक व तआला रआ ضعफना व अजज़ना तय्यबहा लना। क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने जब देखा ना कि हम मजबूर भी हैं और हमें हाजत भी है, तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि हमें उसकी इजाज़त दी। अच्छा जी, चलिए देखें तो हुआ क्या कि अल्लाह के कहने का मतलब ये कि इससे पहले जो है माल गनीमत जो है उसकी इजाज़त नहीं होती थी। वजह क्या है? ज़रा दोनों बातों को समझिए। नबी एक बंदे से कह रहा है कि तुमने किसी दुनिया के साथ तवक्को लगा के मेरे साथ जो है ना जिहाद करने नहीं आना। यानी तुम एक तरह से अपनी कश्तियाँ जला के आना। जब मैं तुम्हें आवाज़ दूँ तो तुमने ऐसा होना है कि लब्बैक कहना और तुमने हर बात छोड़ के आना है। तो बात ये है कि तुम हर बात छोड़ के आओगे तो फिर वो माल गनीमत किस बात का? वो माल गनीमत भी तो अल्लाह के लिए है ना। और अगर आपको कुछ याद हो तो जब हमने किस्सा पढ़ा था ना इनका, आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का, तो उस किस्से के अंदर भी यही हुआ था कि वो जो हाबील और काबील ने जब कुर्बानी की थी ना, तो हाबील की कुर्बानी को आग खा गई थी, काबील की कुर्बानी को आग ने नहीं खाया था। मुराद ये कि वो कुर्बानी कबूल नहीं हुई थी ना। तो ये है बात। लेकिन जब अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदी के लिए गनीमतों को हलाल कर दिया, यानी अगर कोई बंदा गनीमत जो है वो जो है कमांडर उसको इकट्ठा करता है और लोगों के दरमियान बांट देता है, तो ये हलाल चीज़ है इसका खाना पीना। चलिए जी, बस करते हैं, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो बताइए जी, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। हम्म, जी जी, चलिए जी, मेरा ख्याल है कोई क्वेश्चन नहीं है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।